قابل صد احترام پاکستانیوں، 26 فروری 2019 ہندوستان نے پاکستان پر حملہ کیا، ہماری سرحد کو عبور کیا، بالا کوٹ پر بمباری کی، دنیا کو یہ بتایا کہ انہوں نے نشانہ بنایا ہے ایک دہشت گرد کیمپ کو، ایک ملیٹنٹ کیمپ کو، اور اس نشانے میں 300 کے لگ بھگ دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا۔ حقائق آج کھل کر دنیا کے سامنے آ چکے، نہ وہاں کوئی ملیٹنٹ کیمپ تھا اور نہ ہی کوئی دہشت گرد مارا گیا۔ یہ ایک ناٹک تھا، یہ ایک ناٹک تھا سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے، الیکشنز کی کامیابی کے لیے اور داخلی سیاست میں اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرنے کے لیے یہ ایک پلوامہ کا ناٹک رچایا گیا۔ آج تو حقائق کھل کر سامنے آ گئے۔ اگر آپ جو گوسوامی کی اور داس گپتا، پارتھو داس گپتا کی گفتگو کا اور ان کی جو آپس میں جو واٹس ایپ ایکسچینج ہوا اس کا اگر آپ مطالعہ کریں تو ظاہر ہو گیا کہ یہ منصوبہ بندی کی گئی تھی اور اس کے سیاسی مقاصد تھے۔ بہرنو پاکستان نے آج 27 فروری کو ایک نپاتولا باوقار جواب دیا۔ ہم کشیدگی بڑھانا نہیں چاہتے تھے، ہم صرف دنیا کو یہ باور کرنا چاہتے تھے کہ ہم میں عزم بھی ہے، ہم اپنے دفاع کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں، اور اگر ہندوستان نے کوئی مس ایڈونچر کیا تو اس کو منہ توڑ جواب دینے کی ہم صلاحیت رکھتے ہیں۔ ہم نے اپنی سرحدوں کا دفاع کیا، ہم نے اپنی خود مختاری کا دفاع کیا، لیکن ہم نے کوشش کی کہ کوئی جانی نقصان نہ ہو۔ ہم نے ان کے 2 جہاز گرائے اور ایک جو ان کا پائلٹ جو ہمارے قبضے میں آیا، ہم نے فی الفور ایک خیر سگالی کے جیسچر کے طور پر ہم نے اس کو رہا کیا، اور اس کو دنیا نے اپریشیٹ کیا۔ دنیا آج سمجھتی ہے کہ پاکستان امن کا خواہش مند ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب تحریک انصاف کی حکومت معرض وجود میں آتی ہے تو عمران خان صاحب کا، وزیر اعظم پاکستان کا پہلا بیان کیا تھا؟ آپ امن کی طرف ایک قدم اٹھائیں، ہم 2 اٹھانے کے لیے تیار ہیں۔ دنیا آج دیکھ رہی ہے کہ افغانستان میں ہمارا کیا رول ہے۔ ہم وہاں کے امن کے اور استحکام کے لیے جو جستجو اور جو کاوش کر رہی ہیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ دنیا جانتی ہے کہ ہم نے جو کرتارپور کی راہداری جو ہم نے کھولی، اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد تھا انٹر فیتھ ہارمنی اور خیر سگالی کو پروموٹ کرنا۔ ہم نے راستے کھولے ہندوستان میں جو سکھ رہتے ہیں اور دنیا جہان میں جہاں سکھ بستے ہیں کہ وہ آ سکیں اور اپنی ایک مقدس جو ان کی جو گردوارہ ہے وہاں اپنا ماتھا ٹیک سکے۔ یہ ہے ہمارا جذبہ اور یہ تھی ہماری سوچ۔ بہرنو 5 اگست 2019 ہندوستان نے کچھ اقدامات اٹھائے۔ وہ اقدامات ایسے تھے جو کہ کشمیریوں نے یک لخت مسترد کیے، چاہے لائن آف کنٹرول کے اس پار یا اس پار۔ ان اقدامات کو کشمیریوں نے تسلیم نہیں کیا۔ آج سنجیدہ عناصر اس بات پر قائل ہو چکے ہیں کہ وہ اقدامات
न सिर्फ गैर कानूनी थे बल्कि एक तरफा भी थे। उन इक़दामात से जो मकबूजा कश्मीर की बिगड़ी हुई सूरत हाल है वो मजीद उलझ गई, और जो कश्मीरी हैं जो पहले ही मुतनफ़र थे वो आज पहले से ज़्यादा सीपा दिखाई देते हैं, पहले से ज़्यादा नाला दिखाई देते हैं, और हिंदुस्तान को अपने जो इक़दामात हैं उन पर आज हिंदुस्तान की जो सिविल सोसाइटी है, वहाँ का जो दानिश्वर तबका है, जो सेकुलर एलिमेंट है, वो मजबूर कर रहा है कि आपकी कश्मीर पॉलिसी जो है वो नाकाम दिखाई दे रही है। उससे हम लोगों के जो दिल और दिमाग की जो लड़ाई है वो हम हार रहे हैं। हमें उस पर नज़रसानी करने की ज़रूरत है। वो कह रहा है और दुनिया देख रही है कि जो इंसानी हकूक़ हैं उनकी पामाली में इजाफा हुआ। दुनिया ने देखा कि सीज़ फायर वायलेशंस जिनमें बतदरीज इजाफा हो रहा था जब से दिल्ली की ये सरकार हुकूमत में आई, उसमें ख़तरनाक हद तक इजाफा हो गया और संजीदा अनासर तशवीशनाक थे और हैं कि इससे इस खित्ते का अमन और इस्तेहकाम मुतासिर हो सकता है। आपके इल्म में है कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में 5 अगस्त 2019 के बाद कम से कम 4 मरतबा जम्मू और कश्मीर के मसले को ज़ेरे बहस लाया गया। आपके इल्म में है कि सफ़ीर कश्मीर इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 74वें और 75वें इजलास 2019 और 20 में कश्मीर का मुकदमा बैन अक़वामी कम्युनिटी के सामने पेश किया। उनके हकूक़ जिस तरह पामाल हो रहे थे उनकी निशानदेही की। आपके इल्म में है कि 120 से ज़्यादा ऐसी नशिस्तें हुई जिसमें इमरान खान साहब ने, दफ्तर खारजा ने वर्ल्ड लीडर्स के साथ राब्ता किया, यूएन अथॉरिटीज़ के साथ उनसे रिज्यू किया, और उसके साथ साथ जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन तक अपना नुक्ता नज़र पेश किया। आप ये भी जानते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल फरवरी 2020 में जब पाकिस्तान तशरीफ लाते हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने यकीनन देखी होगी। उन्होंने जो बिगड़ती हुई सूरत हाल है उस पर अपनी तशवीश का इजहार किया। आपके इल्म में है कि जिनीवा में जो अक़वाम मुत्तहिदा की ह्यूमन राइट्स कमिश्नर हैं वो 2 रिपोर्ट्स शाया कर चुकी हैं, जून 2018, जुलाई 2019, और हम तवक्को करते हैं कि 3री रिपोर्ट भी शाया करेंगे जिसमें वो जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो दुनिया के सामने रखेंगे। आपके इल्म में है कि ह्यूमन राइट्स काउंसिल जिनीवा में कम से कम मैं 6 कम्युनिकेशंस की निशानदेही कर सकता हूं जिनके ज़रिए हिंदुस्तान की हुकूमत से रुजू किया गया और अपनी तशवीश का इजहार किया गया। आप जानते हैं कि ह्यूमन राइट्स कमिश्नर ने हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की जिसमें कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो कि एक इम्तियाजी कानून है उस पर अपनी तशवीश का इजहार किया। आपके इल्म में है कि ओआईसी के सेक्रेटेरिएट और जो उनका परमानेंट इंडिपेंडेंट परमानेंट ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसके बयानात और उनकी तनकीद और एतराज़ात किसी से पोशीदा नहीं हैं। आप जानते हैं कि दुनिया की पार्लियामेंट्स भी इस पर अपनी राय का इजहार कर चुकी हैं। कम से कम 2 करारदादें तो ऐसी हैं जो यूएस कांग्रेस में पेश की गईं और उनमें
जो रिस्ट्रिक्शंस हैं जो मकबूजा कश्मीर पर आयद हैं उनको उठाने का मुतालबा किया गया। कम से कम 3 नशिस्तें ऐसी हैं जिसमें कि जो वहां इंसानी हकूक को जिस तरह बेदर्दी से पामाल किया जा रहा है उस पर बहस हुई। आपके इल्म में है कि न्यूयॉर्क की जो असेंबली है उसने एक मुत्तफिका करारदाद पास की और कहा कि हर साल 5 फरवरी को हम अमेरिकन कश्मीर डे के तौर पर मुनाकिद करेंगे और कश्मीरियों की जो हक खुद इरादियत की जुस्तजू है उसको उजागर करेंगे। आपके इल्म में है कि बरतानिया की पार्लियामेंट में मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर बहस हो चुकी है। आपके इल्म में है कि कम से कम 45 मेंबरान पार्लियामेंट ऐसे हैं बरतानिया के पार्लियामेंट के जिन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को खत लिखा है, अपने दस्तखतों से खत लिखा है जिसमें कि वो कश्मीर की खुद मुख्तारी और स्टेटस का जिक्र करते हैं। आपके इल्म में है कि कम से कम 15 मेंबरान यूरोपियन पार्लियामेंट ऐसे हैं जिन्होंने यूरोपियन कमीशन के सदर को अपना खत लिखा है और उस खत में उन्होंने जो मकबूजा कश्मीर में जारी लॉकडाउन है उस पर अपनी राय और अपनी तशवीश का इजहार किया है। कौन नहीं जानता कि इंटरनेशनल मीडिया इन 2 सालों में क्या कुछ नहीं लिख चुका। कम से कम 1500 ऐसे आर्टिकल्स हैं, ऑपेड्स हैं, न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं जिनकी मैं निशानदेही कर सकता हूं जिसमें कि हिंदुस्तान की जो वहाँ मकबूजा कश्मीर में पॉलिसीज़ हैं उन पर नुक्ताचीनी की गई है। 90% जो स्टोरीज इंटरनेशनल मीडिया में शाये हुई हैं वो हिंदुस्तान के इक़दामात पर क्रिटिकल हैं, उन पर तनकीद कर रही हैं। और आज आप देख रहे हैं कि एक ऐसी फिजा जन्म ले रही है जो हिंदुस्तान की मौजूदा सरकार को मजबूर कर रही है कि वो अपने इक़दामात पर और अपनी पॉलिसीज पर नज़रसानी करें। कौम ने देखा कि हिंदुस्तान के जो DGMO हैं वो पाकिस्तान के DGMO से हॉटलाइन के जरिए मुखातिब होते हैं और एक अच्छे माहौल में जो गुफ्तगू होती है उस पर इस बात का इरादा करते हैं कि जो 2003 का जो हमारा सीज फायर एग्रीमेंट था वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर में से अहम तरीन एक CBM था। हमें उसकी तरफ लौटना चाहिए और पाकिस्तान ने उसे फराखदिली से कबूल किया और हम समझते हैं कि ये एक मुस्बत पेशरफ्त है। हम समझते हैं कि ये एक ऐसा कदम है जिसको दुनिया की मुल्कों ने, आपने देखा अमेरिका ने सराहा, आपने देखा कि जो जनरल असेंबली के अक़वाम मुत्तहिदा के सदर हैं उन्होंने इस पर अपना एक बयान जारी किया, इसको एक मुस्बत और अहम कदम करार दिया। और ये जो रिकमिट करना है कि जो हम सीज फायर की पासदारी करेंगे लाइन ऑफ कंट्रोल पर और वर्किंग बाउंड्री पर, ये एक ऐसा कदम है और लोग इसका एतराफ़ कर रहे हैं। आपने ये भी देखा कि उस गुफ्तगू में हमें एक इशारा ये भी मिला कि जो हमारे कोर इश्यूज हैं उन पर बिलाखिर हमें उनका हल तलाश करना होगा और वो इश्यूज जो इस खित्ते के अमन को, इस्तेकाम को मुतासिर कर सकते हैं उस पर हमें रास्ता तलाश करना होगा। वो रास्ता कौन सा हो सकता है? दानिशमंदाना रास्ता तो एक ही है और वो रास्ता गुफ्तगू शुनीद का रास्ता है। वो रास्ता एक पुरअमन डायलॉग का रास्ता है। पाकिस्तान कभी डायलॉग से कतराता नहीं था। पाकिस्तान ने पहले दिन से कहा अमन की तरफ आगे बढ़िए, कश्मीरियों के हकूक
ہم پامال نہیں کر سکتے۔ پاکستان سلامتی کونسل کی قراردادوں کا پابند ہے، ہندوستان بھی پابند ہے۔ ہمیں راستہ تلاش کرنا ہوگا اور کشمیریوں کو ان کا حق مناسب طریقے سے دینا ہوگا۔ میں قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستانی قوم امن کو ترجیح دیتی ہے۔ ہمارے جارحانہ عزائم نہ تھے نہ ہیں، لیکن اگر ہم پر جارحیت کی گئی، اگر بالا کوٹ دہرایا گیا، تو یہ قوم اپنا دفاع کرنا جانتی ہے۔ پاکستان زندہ باد۔